শ্রীলঙ্কার সংকটের প্রভাব পড়েছে ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানিতে। শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে কমে গেছে দেশটির পেঁয়াজ রপ্তানি। যদিও বাংলাদেশের রপ্তানি কমার কারণ হিসেবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ভারতীয় পেঁয়াজের সবথেকে বড় বাজার। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য আজকে ভিডিও प्ले করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सभी देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि श्रीलंका के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदहाली हो चुकी है। श्रीलंका की मईशत डूब चुकी है। श्रीलंका के पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी के साथ भी इम्पोर्ट कर सकें, किसी से भी कोई चीज़ खरीद सकें। यही वजह है कि श्रीलंका के अंदर मईशत बहुत ही ज़्यादा क्रैश कर चुकी है। वहाँ पे बैरून मुल्क से मंगवाई जाने वाली चीज़ें इंतहाई मुश्किल से मिल रही हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ख़त्म हो चुका है और वो किसी किस्म की भी इम्पोर्ट नहीं कर रहे। अब श्रीलंका तो ख़रीद नहीं सकता कोई चीज़, और बांग्लादेश ने भारतीय प्याज के ऊपर बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। एक टाइम वो था कि भारत बांग्लादेश को प्याज की सप्लाई बंद कर देता था। एक टाइम वो था कि हिंदुस्तान प्याज की एक्सपोर्ट बंद कर देता था बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के अंदर प्याज की मांग बढ़ जाती थी, जिसके तहत बांग्लादेश के अंदर प्याज बहुत महंगा हो जाता था और मिलता ही नहीं था। बांग्लादेश ने बड़े फैसले किए और बांग्लादेश के अंदर प्याज उगाया, प्याज की काश्त की। अब बांग्लादेश के अंदर इतना प्याज हो चुका है कि इसको भारतीय प्याज की ज़रूरत ही नहीं रही। बांग्लादेश अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्याज की काश्त बांग्लादेश के अंदर करना शुरू कर दिया। अब भारत के लिए मुश्किल बन चुकी है कि वो प्याज अब किसको बेचे। जो बांग्लादेश को सेल करता था, जो श्रीलंका को सेल करता था, श्रीलंका के पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्याज खरीद सके, और बांग्लादेश वो प्याज खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि अपनी ज़रूरत के मुताबिक बांग्लादेश में प्याज की काश्त कर ली है। अब बांग्लादेश की हुकूमत ने बाइकआउट किया है भारतीय प्याज का, तो इसके बाद भारत की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश ने किस तरह बाइकआउट किया और भारत अब प्याज को लेकर कितना ज़्यादा परेशान है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। শ্রীলঙ্কার সংকটের প্রভাব পড়েছে ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানিতে। শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে কমে গেছে দেশটির পেঁয়াজ রপ্তানি। যদিও বাংলাদেশের রপ্তানি কমার কারণ হিসেবে ভারতীয় গণমাধ্যম ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস বলছে, দেশীয় উৎপাদনকারীদের উৎসাহ দিতে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ নানা ব্যবস্থা নিচ্ছে। এর অংশ হিসেবে আমদানি করা পেঁয়াজের উপরে ট্যাক্স আরোপ করা হয়েছে, আর এতেই বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি কমে গেছে ভারতের। অপরদিকে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আমদানি কমিয়ে দিয়েছে শ্রীলঙ্কাও। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা ভারতীয় পেঁয়াজের সবথেকে বড় বাজার। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বলছেন, শ্রীলঙ্কায় পেঁয়াজ পাঠালে তার দাম পেতে দেরি হচ্ছে, এ কারণে সেখানে রপ্তানি থামিয়ে দিয়েছেন তারা। 1948 সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সংকট চলছে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্রটিতে। গত বছর পাঠানো পেঁয়াজের দামও পাননি অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী। ভারতীয় রপ্তানিকারকরা জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে সপ্তাহে পেঁয়াজ রপ্তানি 4 থেকে 5 হাজার টন থেকে কমে 1,500 টনে নেমে এসেছে। বাংলাদেশের বিষয়ে ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, সরকার দেশীয় পেঁয়াজ চাষকে উৎসাহিত করতে পেঁয়াজ আমদানির উপরে কর আরোপ করেছে। এতে প্রতি কেজি পেঁয়াজে 2.80 টাকা ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। পেঁয়াজ রপ্তানিতে ভারতের একাধিক নিষেধাজ্ঞায় বাংলাদেশে পেঁয়াজের আকাশচুম্বী দাম দেখা গিয়েছিল। এরপরই বাংলাদেশ সরকার দেশীয় পেঁয়াজকে উৎসাহিত করতে নানা ব্যবস্থা নেয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় 10 লাখ টন পেঁয়াজ লাগে, এর বেশিরভাগই ভারত থেকে আমদানি করা হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ফিনান্সিয়াল টাইমসকে জানান, ভারত যখন পেঁয়াজ বন্ধ রেখেছিল তখন বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশ করে পাকিস্তান, মিয়ানমার ও আফগানিস্তান। এখন ওই বাজারকে আবারও ফেরত পাওয়া ভারতের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিসেব বলছে 2018-19 মৌসুমে ভারত 21.8 লাখ টন পেঁয়াজ রপ্তানি করে, যা 20-21 মৌসুমে কমে 15.75 লাখে নেমে এসেছে। 2021 অর্থ বছরে ভারত প্রায় $38 কোটি পেঁয়াজ রপ্তানি করে, যার $10 কোটি আসে বাংলাদেশ থেকেই। এছাড়া শ্রীলঙ্কা, মালয়েशिया ও আরব আমিরাত ভারতীয় পেঁয়াজের বড় ক্রেতা। तो जी ये थी वीडियो, और आपने देखा कि भारत के ज़्यादा ग्राहक बांग्लादेश और श्रीलंका थे। श्रीलंका की मईशत क्रैश कर चुकी है और उनके पास पैसा नहीं है कि वो किसी से भी इंपोर्ट करवा सकें, कोई भी चीज़ खरीद सकें।
और बांग्लादेश अब खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर प्याज की पैदावार इतनी हो चुकी है कि वो बांग्लादेश की ज़रूरत पूरी कर सके। एक टाइम वो था कि भारत बांग्लादेश को तंग करता था, प्याज नहीं देता था, पैसे ले लेता था, प्याज नहीं देता था, और अगर देता था तो वो गला सड़ा प्याज देता था जिसकी ज़रूरत बांग्लादेश को नहीं होती थी और बांग्लादेश के इस्तेमाल के काबिल भी नहीं होता था। लेकिन अब देखें तो भारत अब प्याज की बड़ी मार्केटें खो चुका है। श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं है कि वो भारतीय प्याज खरीद सके, और बांग्लादेश अब खरीदना नहीं चाहता क्योंकि बांग्लादेश को टैक्स भी देना पड़ता है और प्याज भारत की मर्जी से बांग्लादेश आता है। अब बांग्लादेश के काश्तकारों ने इतना काश्त कर लिया है कि बांग्लादेश की ज़रूरत को पूरा कर सके। अब भारत के लिए मुश्किल बन चुकी है कि उसके हाथ से दो मार्केटें खो चुकी हैं जो बहुत बड़ी मार्केटें थी भारतीय प्याज के लिए। एक था बांग्लादेश और दूसरा था श्रीलंका। अब बांग्लादेश को भारत के प्याज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और श्रीलंका भारतीय प्याज खरीद नहीं सकता। ये दोनों भारत की हाथ से निकल चुकी हैं। भारत बहुत ज़्यादा परेशान है इन दोनों ममालिक को लेकर। तो आप इस वीडियो के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं भारत को, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।